फर्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। तो आपने बताना है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, hot desert, and you can here give example hot desert example Africa, oh sorry Sahara, hot desert example Sahara desert, cold desert example Ladakh. Two types of desert, hot desert and cold desert. So listen again, two types of deserts are hot desert example Sahara desert, cold desert example Ladakh. Now I think clear. Listen again. अगर मैं आपसे पूछूं define desert and write its two types, तो आपने कहना है desert is an area covered by loose sand or covered by आप कह सकते हो ice and snow and ice. तो there are two types of deserts. तो आपने बताना है हॉट डेजर्ट एग्जाम्पल, हॉट डेजर्ट एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, ठीक है। फिर आपने बताना है कोल्ड डेजर्ट एग्जाम्पल लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट एग्जाम्पल लद्दाख. नो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट. फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, cold desert example Ladakh. No, is it clear? Two types. Which are the two types of desert? Hot desert and cold desert. And here you have to give examples. You have read in detail ना, अपने दोनों के बारे में पढ़ा. तो in which continent Sahara Desert located? Sahara Desert is located in Africa. Sahara Desert is located in Africa. Name the continent. Sahara Desert is located in, you know it very well, इतने दिनों से हम कर रहे हैं. It is located in Africa. अगर मैं पूछूं तो अफ्रीका के किस पार्ट में है, तो you can give answer. जैसे आप कह सकते हो it lies in the north part of Africa. पहले तो आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए. सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. अगर आपसे पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट किस पार्ट में अफ्रीका के, तो आप कहोगे इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के नॉर्थ में सहारा डेजर्ट है. इज इट क्लियर? सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो यू नो इट वेरी वेल, अफ्रीका. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अफ्रीका के किस पार्ट में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नॉर्थ, तो आपने कहना है इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका. तो इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. तो आपको यहाँ का क्लाइमेट पता होना चाहिए. क्लाइमेट, क्लाइमेट तो दोनों का ही आना चाहिए ना. इधर आप कहोगे लद्दाख हैज, लद्दाख का क्लाइमेट आप बताओगे. क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज एक्सट्रीमली, लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. या फिर आप कह सकते हो लद्दाख हैज कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड एंड ड्राई, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में है. तो क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. Ladakh is in high altitude, so the climate is extremely cold and dry. It is in high altitude, higher, क्योंकि ये greater Himalayas में है, in the upper part of Himalayas में है. You know it very well. So climate is extremely cold and dry. कैसा climate है? Extremely cold and dry. उधर आपका extremely hot and dry. But we are doing climate of Ladakh. So it is in higher altitudes. Climate is extremely cold and dry. And then you can also explain it by writing these points. The day temperature, या फिर आप ऐसे कह सकते हो in summer the day temperature is above 0 degree. In summer, the day temperature is above 0 degree, and during night, summer में, in summer, the day temperature is above
0 degree, and during night temperatures are below -30 degrees Celsius. Night में -30 degrees Celsius. During day, in summers, during day the temperature is above 0 degree, and during night temperatures are below -30 degrees Celsius. In winters the temperatures, अब winter में क्या रहता है? In winter the temperatures remain below -40 degrees Celsius. In winters temperatures remain below -40 degree Celsius. It gets little rainfall as it lies in rain shadow area. क्योंकि ये rain shadow area में है, तो that's why it gets little rainfall. It gets little rainfall as it lies in rain shadow area, only 10 centimeter annually. सिर्फ 10 centimeter rainfall होती है यहाँ पे पूरे साल में. तो listen again. It is in higher altitude. Higher altitude में होने के कारण climate is extremely cold and dry. Ladakh is in higher altitude, so climate is extremely cold and dry. फिर आप बताओगे in summers. पहले आप summers की बात कर लोगे. In summers, temperature during day is above 0 degree, and during night temperatures are below -30 degrees Celsius. In winters, temperatures remain below -40 degrees Celsius. It gets little rainfall 10 centimeter annually, because it lies in rain shadow area. क्योंकि ये rain shadow area में है. It gets little rainfall 10 centimeter annually because it lies in rain shadow area. अगर यहाँ का क्लाइमेट पूछ लिया तो आपने कहना extremely hot and dry. Days are very hot, nights are freezing, nights are cold. तो इस वजह से आप यहाँ का क्लाइमेट बताओगे. Days are hot and nights are cold and gets little rainfall. यहाँ पे भी आप कहोगे it gets little rainfall. Now is it clear? सहारा डेजर्ट का भी आ जाए क्लाइमेट तो नो प्रॉब्लम. कहाँ का क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई? लद्दाख, क्योंकि लद्दाख इज इन हायर एल्टीट्यूड्स. लद्दाख इज इन हायर एल्टीट्यूड, सो इट हैज extremely cold and dry climate. In summers, during the day temperatures are above 0 degree. During night temperatures are below -30 degrees Celsius. In winter temperatures remain below -40 degrees Celsius. It gets little rainfall 10 centimeter annually because it lies in rain shadow area. अब लद्दाख जो है यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट विजिट करते हैं. क्यों टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं लद्दाख की तरफ? What is the reason why tourists attract towards Ladakh? Tourism is the major activity with several tourist spots in Ladakh. तो सबसे पहले तो आप यही बताओगे, tourism is the major activity with several tourist spots of Ladakh. Tourism is the major activity of Ladakh. Which is the major activity of Ladakh? Tourism. Tourism is the major activity of Ladakh with several tourist spots. Major activity of Ladakh, tourism. Tourism is the major activity of Ladakh with several tourist spots. अब हम सबसे पहले तो बताएंगे कि लद्दाख की सीनिक ब्यूटी है ना जो, दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट. तो फर्स्ट पॉइंट आप यही बता दो कि सीनिक ब्यूटी ऑफ लद्दाख अट्रैक्ट्स टूरिस्ट. वहां की सीनिक ब्यूटी जो है ना, दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट. देन आप बता सकते हो टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू सी ग्लेशियर्स, meadows,
मेडोज ग्रास की जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड ऑफ ग्रास. टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू सी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स देखने जाते हैं. मेडोज ग्राउंड ऑफ ग्रास जो होती है. टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू सी ग्लेशियर्स, मेडोज एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही बताओगे कि टूरिज्म इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ लद्दाख विद सेवरल टूरिस्ट स्पॉट्स. फिर आप बताओगे सिनिक ब्यूटी ऑफ लद्दाख अट्रैक्ट टूरिस्ट. वहां की सिनिक ब्यूटी जो है ना, दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट. फिर आप कह सकते हो टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू सी ग्लेशियर्स, मेडोज एक्सेट्रा. फिर आप ये बता सकते हो कि टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू enjoy ceremonies and festivities celebrated by Ladakhi people. Tourists visit Ladakh to enjoy ceremonies and festivities celebrated by Ladakhi people in winter. Winter में वो अपने आप को engage कर लेते हैं ना. They celebrate various ceremonies, festivities. So tourists visit Ladakh to enjoy ceremonies and festivities celebrated by Ladakhi people. फिर आप ये भी बता सकते हो कि बुद्धिस्ट टूरिस्ट विजिट लद्दाख. बुद्धिस्ट टूरिस्ट जो है ना, विजिट लद्दाख. बुद्धिस्ट टूरिस्ट विजिट लद्दाख to pay homage to their monasteries, gompas, etc. Buddhist tourists visit Ladakh to pay homage. या तो आप सिंपल बता दो, Buddhist tourists visit Ladakh as there were various monasteries and gompas. Buddhist temple, gompas. Buddhist tourists visit Ladakh as there are various, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारी आप कह सकते हो मोनेस्ट्रीज और गोम्पास हैं. बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी लद्दाख जाते हैं एज देयर आर वेरियस गोम्पास और मोनेस्ट्रीज. तो वहां पे मोनेस्ट्रीज या गोम्पास में वो जाते हैं. ठीक है. फिर आप लास्ट में ये भी बता सकते हो कि पीपल विजिट लद्दाख टू एंजॉय द क्लाइमेट. क्लाइमेट एंजॉय करने भी जाते हैं लोग वहां का. इज इट क्लियर? लिसन अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लद्दाख जो है ना, दैट इज फेमस फॉर टूरिस्ट एक्टिविटी विद वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स. टूरिज्म इज द मेजर एक्टिविटी विद इन लद्दाख विद मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स. फिर आप कह सकते हो कि टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू एंजॉय सीनिक ब्यूटी. टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू सी ग्लेशियर्स, meadows, etc. Tourists visit Ladakh to enjoy the ceremonies and festivities celebrated by Ladakhi people. फिर आप कह सकते हो tourists visit Ladakh to enjoy the climate. Buddhist tourists also visit Ladakh as there are various gompas और monasteries, क्योंकि वहां पे gompas और मोनेस्ट्रीज हैं. गोम्पास बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं, गोम्पास और मोनेस्ट्रीज हैं. तो बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी लद्दाख जाते हैं. नो, इज इट क्लियर? क्यों टूरिस्ट लद्दाख जाते हैं? वहां का क्लाइमेट एंजॉय करने, वहां की सीनिक ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है. वहां पे ग्लेशियर्स, मेडोज. फिर हम कहेंगे कि वहां पे बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी जाते हैं बिकॉज देयर आर वेरियस गोम्पास एंड मोनेस्ट्रीज. तो लोग लद्दाखी पीपल जो अपने सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करते हैं ना, टूरिस्ट उन्हें भी इंजॉय करने जाते हैं. इज इट क्लियर? व्हाई टूरिस्ट विजिट लद्दाख? क्योंकि उनको ये वाली बातें अट्रैक्ट करती हैं. अब इधर सहारा डेजर्ट के लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर हैवी रॉब्स. हैवी रॉब्स पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड डस्ट. People of Sahara Desert wear
heavy drops to protect themselves from hot winds and dust storms. सहारा डेजर्ट के लोग हैवी ड्रॉप्स पहनते हैं. पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट, एक खुला सा ड्रॉप्स पहना होता है उन्होंने. पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वेयर हैवी ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट, किससे बचाने के लिए? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड डस्ट, डस्ट और हीट से बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे डस्ट स्टॉर्म्स डेली आते हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत हॉट एंड ड्राई है. तो अपने आप को ही हम कहेंगे डस्ट एंड हीट से बचाने के लिए ये लोग हैवी ड्रॉप्स पहनते हैं. यू कैन आल्सो राइट कि दीज पीपल आल्सो वेयर टर्बन्स, टर्बन्स भी पहनते हैं. ठीक है, आपकी मर्जी आप कैसे लिखो. पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट क्या पहनते हैं? हैवी ड्रॉप्स. वो हैवी ड्रॉप्स जो होते हैं उन्हें कहा किससे बचाते हैं? डस्ट एंड हीट से. डस्ट एंड हीट, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डस्ट एंड हीट. नो इज इट क्लियर? सहारा के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? हैवी ड्रॉप्स, क्योंकि वहां पे डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन है ना, सैंडस्टॉर्म्स डेली आते हैं वहां पे, तो इसलिए. और वैसे भी क्लाइमेट इज वेरी हॉट. तो पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वेयर हैवी ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डस्ट एंड हॉट विंड या हीट एंड डस्ट. अब लद्दाख में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन लद्दाख? यू नो इट वेरी वेल. पॉपुलर, विलो ट्रीज. विलो ट्रीज आपको पता है जिससे बैट बनते हैं. ठीक है, पॉपुलर ट्रीज एंड विलो ट्रीज आर फाउंड इन लद्दाख. फिर आप कहोगे फ्रूट ट्रीज आर आल्सो, फ्रूट ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट ट्रीज भी बताओगे. एप्पल ट्रीज पाए जाते हैं, वॉलनट पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओगे पॉपुलर एंड विलो ट्रीज पाए जाते हैं. ठीक है, पॉपुलर ट्री एंड विलो ट्रीज. विलो ट्री से क्या बनाते हैं वो? बैट्स. फिर आप बताओगे कि ड्यूरिंग समर फ्रूट ट्रीज आर आल्सो ग्रो इन लद्दाख सच एज एप्पल ट्रीज, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स. समर में यहाँ पे फ्रूट ट्रीज भी ग्रो होते हैं. Apple trees, walnuts and apricots. Poplar and willow are the main trees found in Ladakh. Poplar and willow. Willow से क्या बनाते हैं? क्रिकेट बैट्स. Willow tree की wood से क्या बनते हैं? क्रिकेट बैट्स. फिर आप कहोगे in summer fruit trees are also grown in Ladakh such as, कौन से वाले fruit trees grow होते हैं? Apple trees, walnuts, apricots. Now is it clear? Apple trees, walnuts, apricots. Two types of desert. Hot desert, example Sahara. Cold desert, example Ladakh. Next, अगर आपको बताना है कि सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है तो यू विल राइट अफ्रीका. अगर आपको साथ में पूछा जाए इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका. तो फिर आपको पूछा जाए लद्दाख का क्लाइमेट बताओ. लद्दाख कहाँ पे है? हायर एल्टीट्यूड में. इट लाइज इन हायर एल्टीट्यूड, सो क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. वो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई है, ये एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है. फिर आप यहाँ पे बताओगे इन समर्स, समर्स में ड्यूरिंग डे टेम्परेचर्स आर अबव 0 डिग्री and during night temperatures are below -30 degrees Celsius. In winters temperatures remain below -40 degrees Celsius. फिर आप बताओगे it gets little rainfall 10 centimeter annually because it lies in rain shadow area. क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में आता है तो इसलिए यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है. बारिश तो इधर भी कम होती है. यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई है. ठीक है, नेक्स्ट, क्यों ये टूरिज्म के लिए फेमस है? टूरिस्ट क्यों लद्दाख जाते हैं? सबसे पहले तो वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स आर देयर इन लद्दाख. लद्दाख में बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. वहाँ की सीनिक ब्यूटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. फिर वहाँ पे ग्लेशियर्स, मेडोज हैं, ग्रास ग्राउंड्स होती हैं, लोग वो देखने जाते हैं, वहाँ पे इंजॉय करने जाते हैं.
लोग क्लाइमेट एंजॉय करने जाते हैं, टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू एंजॉय द क्लाइमेट। फिर टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू एंजॉय द ceremonies and festivities celebrated by Ladakhi people। फिर हम कहेंगे बुद्धिस्ट टूरिस्ट आल्सो विजिट लद्दाख एज देयर आर वेरियस मोनेस्ट्रीज और गोम्पास, क्योंकि वहां पे मोनेस्ट्रीज या गोम्पास हैं, तो इसलिए बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी लद्दाख जाते हैं। नो इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ के लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? हैवी रॉब्स। People of Sahara Desert wear heavy robes to protect themselves from heat and dust। अगर मैं पूछूं आपसे कि कैसे वाले ट्रीज पाए जाते हैं लद्दाख में, तो आपने कहना पॉपुलर एंड विलो ट्रीज आर फाउंड इन लद्दाख। फिर आपने बताना इन समर्स फ्रूट ट्रीज आर आल्सो ग्रो इन लद्दाख सच एज एप्पल ट्रीज, वॉलनट, apricots। Now is it clear? Walnut, apricots। Sahara is located, मैंने अभी पूछा था, Sahara is located in which part of Africa? Northern। कौन से पार्ट में है? Northern part। Sahara is located in northern part of Africa। तो सहारा कैसा डेजर्ट है? मैंने पहले ही लिखा हुआ है कैसा डेजर्ट है ये, हॉट और कोल्ड? हॉट डेजर्ट। सहारा इज हॉट डेजर्ट। सहारा किस पार्ट में है अफ्रीका के? नॉर्दर्न। ये कैसा डेजर्ट है? हॉट और कोल्ड? इट इज हॉट डेजर्ट। अगर मैं लद्दाख पूछूं तो इट इज कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट, लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहैबिटेड बाय। लद्दाख में कौन रहते हैं आप मुझे बताओ? हिंदू और बुद्धिस्ट, या फिर बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो वी हैव रेड बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं। बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स इन लद्दाख। बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। नेक्स्ट, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। डेजर्ट में आप बताओ बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है कि वेजिटेशन कम है? तो अगर इसमें से हम सिलेक्ट करें तो वेजिटेशन इज लेस, स्कैंटी वेजिटेशन। दोनों में वेजिटेशन बहुत कम है। वो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई है, वहां पे भी रेनफॉल नहीं होती। ये एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है, यहाँ पे भी रेनफॉल नहीं होती। तो जहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होगी, ड्राई क्लाइमेट होगा, वहां पे क्रॉप्स वेजिटेशन जो है दैट इज स्कैंटी, लेस वेजिटेशन। तो डेजर्ट्स में स्कैंटी वेजिटेशन, लेस वेजिटेशन। नेक्स्ट, हेमिस इन लद्दाख इज फेमस। हेमिस है क्या? मॉस्क्यू क्या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है? इट्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। हेमिस इज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। इजिप्ट किस बात के लिए फेमस है? कॉटन के लिए, क्योंकि इजिप्ट में से नाइल रिवर जाती है। तो इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप। इजिप्ट इज फेमस फॉर, इजिप्ट की मेन रिवर नाइल, तो इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो नेक्स्ट इज ओएसिस, डिप्रेशंस विद वाटर। ओएसिस, डिप्रेशंस विद वाटर, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस एंड फॉर्म बिग पूल। बेडोइंस, बेडोइंस आपको कहाँ पे आपने पढ़े, कहाँ पे पाए जाते हैं? तुरेग्स एंड बेडोइंस, सहारा डेजर्ट। तुरेग्स एंड बेडोइंस कहाँ पे रहते हैं? सहारा डेजर्ट। बेडोइंस कहाँ के रहने वाले हैं? सहारा डेजर्ट। ऑयल, ऑयल इज फाउंड इन लीबिया। ऑयल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन लीबिया। गैंगरी, गैंगरी किसका नाम है? ग्लेशियर। गैंगरी ग्लेशियर है लद्दाख में। गैंगरी, यहाँ पे साइचिन है, यहाँ पे गैंगरी ग्लेशियर। गैंगरी ग्लेशियर। लामायूरू, व्हाट इज लामायूरू? मोनेस्ट्री है। हेमिस, लामायूरू, थिक्सी, ये किसके नाम है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दैट आर इन लद्दाख। तो लामायूरू है क्या? मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तभी तो बुद्धिस्ट टूरिस्ट आते हैं लद्दाख में, बिकॉज देयर आर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पास।
तो देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट। क्यों डेजर्ट में बहुत कम वेजिटेशन है? बिकॉज क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन द डेजर्ट। हम दोनों की बात करें तो हॉट डेजर्ट में हम कहेंगे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट दोनों ही ड्राइंग है, रेनफॉल इज लिटल, सॉइल इज नॉट फर्टाइल, वहां पे सैंडी सॉइल है, हियर लैंड इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो, सो दैट्स व्हाई लिटिल वेजिटेशन इज फाउंड। Listen again, why there is scanty vegetation? Because climate is not suitable for growing crops. Soil is also not suitable for growing crops. यही reason होंगे ना, both desert may be hot or cold, both get little rainfall. दोनों ही little rainfall, दोनों में ही little rainfall होती है. Here land is in hot desert, land is covered by loose sand, soil is not fertile, and in cold desert land is covered by ice and snow. So that's why there is little vegetation. पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट जो है वो हैवी रोब्स क्यों पहनते हैं? तो हम कहेंगे बिकॉज क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट, है ना, एंड डस्ट स्टॉर्म्स, सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट। क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन। सैंडस्टॉर्म्स वहां पे रोज आते हैं, सो दैट्स व्हाई पीपल वेयर हैवी रोब्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड डस्ट। वो अपने आप को हीट एंड डस्ट से बचाने के लिए हैवी ड्रॉप्स पहनते हैं, बिकॉज क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है एंड यहाँ पे डेली क्या आते हैं? सैंड स्टॉर्म्स। तभी तो मैंने बताया नहीं था सैंड ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे ऑलवेज कीप ऑन शिफ्टिंग। सैंड ड्यून्स हमेशा वहां पे शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वहां पे सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन। तो वहां पे सैंड स्टॉर्म्स भी आते हैं, क्लाइमेट भी वेरी हॉट है, तो people wear heavy robes to protect themselves from heat and dust. Heat and dust से बचाने के लिए अपने आप को वो लोग क्या पहनते हैं? Heavy robes.